Big phone tapping charge on Gehlot. Gehlot's former aide makes big claims. Gehlot's ex-aide now says that Shekhawat and Pilot's phones were tapped. Ex-aide Lokesh says that audio of rebel MLAs were leaked. He claims that Ashok Gehlot, former Rajasthan chief minister, tapped the phones of Sachin Pilot and rebels in July 2020 when the government was rocked by the rebellion of Pilot and 19 MLAs who seemed to be supporting at that point of time. Certain audio conversations of the rebel MLAs were then leaked to the media as well. So a sensational charge being levelled by the former aide of Rajasthan Chief Minister, then Ashok Gehlot, that at the time that he was facing rebellion from Sachin Pilot and 19 other MLAs, he in fact tapped their phones. Let's listen in to this conversation. प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने जो बातें कही हैं, एक अगर उसमें सच्चाई है तो ये बड़ी ही धमाकेदार बातें रही। आपने कहा कि जो फोन टैपिंग्स अलेजेडली ऑडियो रिकॉर्डिंग्स गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट मंत्री, पूर्व कांग्रेस नेता या दिवंगत कांग्रेस नेता भंवरलाल शर्मा की जो थी वो आपको खुद तब के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी थी। डिटेल में बताइए सर, प्रकरण क्या था, कब आपके हिसाब से आपको रिकॉर्डिंग्स दी गई, कहां पे दी गई, क्या वो हैंडओवर करने वाले खुद तब के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे? 16 जुलाई 2020 की बात है। चूंकि उस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस था प्रदेश में, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी के साथ कुछ विधायक कहीं एकत्रित हुए थे और ऐसा माना जा रहा था कि सरकार अल्पमत में आ गई है, सरकार गिर जाएगी। 16 जुलाई 2020 को शाम को लगभग 5 बजे के आसपास उनके पीएसओ हैं रामनिवास, उनका मेरे पास कॉल आया कि आप तुरंत मुख्यमंत्री निवास पहुंचिए, मुख्यमंत्री जी आपको याद कर रहे हैं। मैं पहुंचा, मुझे हालांकि 1-1.5 घंटा लगा था पहुंचने में, तो उस दौरान 3-4 बार उनका कॉल आ गया कि आप जल्दी आइए, मुख्यमंत्री जी आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे जाने पर उन्होंने मुझे पेन ड्राइव और एक टाइप्ड पेपर दिया और ये कहा कि इसमें जो कुछ भी है वो मीडिया को तुरंत आप सर्कुलेट कर दें। उस पेपर में जो टाइप था उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत जी का नाम था, उसमें दिवंगत हमारे कांग्रेस के नेता और उस टाइम के विधायक भंवरलाल शर्मा जी का नाम था, एक संजय जैन करके कोई और थे उनका नाम था। मैंने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया नहीं और मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, जो मुझे निर्देश दिए गए थे उनको निभाते हुए, मैंने मीडिया को वो सारी ऑडियो क्लिप्स भेज दी। My colleague Dev Ankur, who spoke in fact with Lokesh, is joining us at the moment. Dev, these are very sensational charges that he's levelling against the former chief minister of the state, something that the opposition has, including Gajendra Shekhawat, they have accused in the past. This definitely throws the spotlight on Ashok Gehlot again and his administration at that point of time. Well, that is quite right, Paulomi. The fact of the matter is that Ashok Gehlot is yet to come out and respond to the kind of incriminating accusations or perhaps, the serious accusations that have been leveled against him regarding his tenure when Lokesh Sharma was the OST of the then Chief Minister. At that point in time, Gajendra Singh Shekhawat, the Cabinet Minister, there were several allegations that were made against him by Ashok Gehlot, mentioning that he was trying to topple his government and also claiming that some members of his own party, including Sachin Pilot, who was earlier the Deputy Chief Minister. Just hold on for a moment. Pratap Singh Khacharyavas, who's a Congress leader from Rajasthan, is joining us over the phone line right now. Pratap ji, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लोकेश शर्मा का कहना है कि अशोक गहलोत लोगों के फोन टैप करवाते थे, स्पेशली वो लोग जो उनके खिलाफ खड़े हुए, जैसे कि गजेंद्र सिंह शेखावत या फिर सचिन पायलट। जब 2020 का वो किस्सा हुआ जब सचिन पायलट कुछ एमएलएस को अपने साथ ले गए थे गुड़गांव में और एक रिबेलियन के तौर पर एक सामने उन्होंने चुनौती खड़ी की थी। एक बार समझ कौन है लोकेश शर्मा? ये आदमी जो फर्श पर था उसको अशोक गहलोत ने अर्श पर बिठा दिया गहलोत साहब, और जो आदमी कल तक सरकार में था, उनका ओएसडी बनकर, गैर एसोसी बनकर काम कर रहा था, अचानक भारतीय जनता पार्टी के दबाव में डरपोक है ये आदमी और ऐसे बड़े बड़े एलिगेशन लगा रहा है। राजा हरिश्चंद्र है क्या? कौन है ये? मैं सबको जानता हूँ इनसे।
ये जो लोग, मैं जयपुर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मूवमेंट से निकला, इस व्यक्ति की जिसकी कोई औकात नहीं थी, उसकी औकात बना दी अशोक गहलोत जी ने। अशोक गहलोत जी के बारे में पूरा राजस्थान जानता है। तो अशोक गहलोत इस वक्त हम कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। अशोक गहलोत एक नाम है जो सार्वजनिक जीवन में अपनी एक इमेज रखते हैं, अपना एक सम्मान रखते हैं। और किसका फोन टेप हुआ नहीं हुआ, मैं खुद कैबिनेट मिनिस्टर था सरकार में। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों साथ घूम रहे हैं, साथ मीटिंगें ले रहे हैं। प्रताप सिंह के, सचिन पायलट के, अशोक गहलोत के कोई दर्द नहीं है। इसका इनकी अशोक लोकेश शर्मा की जांच चल रही है दिल्ली में। अब उस जांच से बचने के लिए पता नहीं बीजेपी तो जा रही है, बीजेपी क्यों परेशान हो रहा है लोकेश शर्मा। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से आम आदमी डरने लगा कि बेचारा लोकेश शर्मा की भी गलती नहीं है, ये भी पुलिस से बचने के लिए कर रहा होगा सब नाटक। लेकिन ये नाटक जो जिस तरह से बोल रहा है अचानक, ये तब क्यों नहीं बोल रहा था जब सरकार में था अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री, तब किसी ने रोका था। अब बीजेपी के हाथों में चुनाव के वक्त खेल रहा है, कौन सुन रहा है इसकी सब जानते हैं। इस तरह के जो लोग अपने परिवार को छोड़कर, युद्ध शुरू होने के बाद परिवार को छोड़कर दूसरी साइड में जाकर उनके हाथों में खेलते हैं, वो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन जब कोई व्यक्ति युद्ध शुरू होने के बाद अपने परिवार को छोड़कर दूसरी सेना के साथ जाकर खड़ा हो जाता है, वो सबसे बड़े पाप का भागीदार बनता है। ऐसा कभी होता है? ये आदमी कल तक उनके यहाँ काम कर रहा था, शर्म लाज छोड़ दी इस आदमी ने। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। जब परिवार युद्ध में उतर चुका हो तब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं होती है। जब ये अब परिवार का सदस्य ही नहीं रहा तो भाई तू बीजेपी के हाथों में खेल ही रहा है, और तू खेल घूम, इसके कहने से क्या फर्क पड़ रहा है, क्या हो जाएगा इसके कहने से? सर ये बताइए कि अचानक ये कैसे शुरू हुआ, क्योंकि जैसे ही राजस्थान में कांग्रेस चुनाव हारी, लोकेश शर्मा का बोलना शुरू हो गया अशोक गहलोत के खिलाफ। अब आप बताइए, जब पहले ये बोल चुका उसी दिन पूरी बात बोल देता। अब ये रोज बार बार टीवी पे आता है। जैसे अब इलेक्शन है, कांग्रेस जीत रही है राजस्थान में, अशोक गहलोत मेहनत कर रहे हैं पूरे राजस्थान में, पूरी कांग्रेस लगी हुई है। हम यहाँ पर बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं राजस्थान में। बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा, इसीलिए प्रधानमंत्री जी की भाषा बदल गई है, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। जिस आदमी ने नोट छीन लिए घर घर से, नोटबंदी लागू कर दी, घर घर से गहनों का हिसाब मांग रहे, तो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। अरे नोट तो आपने छीने थे पूरे देश में, आप किसके ऊपर आरोप लगा रहे हो प्रधानमंत्री जी? जब आप हारने लगे तो इधर उधर की बात करने लगे। अब ऐसे लोगों को भी पकड़ पकड़ के बीजेपी इनसे करवा रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कांग्रेस और मजबूत होगी। अशोक गहलोत को भी कोई नुकसान नहीं होगा। लोग ऐसे लोगों को ना सीरियस लेते हैं, सब जानते हैं। चुनाव के वक्त इस तरह के लोग दूसरी पार्टी के बीजेपी के खाते में जाकर बोल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कौन सीरियस ले रहा है इनको? सब झूठे फालतू की बातें कर रहा है क्या? प्रताप जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। माय कॉलीग Devankur Vadhavan is also joining us right now. They earlier spoke with Lokesh Sharma. The Congress is saying that Lokesh Sharma is coming out and speaking at the time that he is. He's been speaking for a while now, but again he is speaking simply because he is playing into the hands of the BJP which fears that its tally is going to drop in this Lok Sabha election in Rajasthan. Well, follow me clearly. The timing of Lokesh Sharma's, statements can be questioned. The fact of the matter is that 13 seats will be up for contest tomorrow in Rajasthan as far as Lok Sabha elections are concerned. But the fact of the matter also remains that the kind of allegations that Lokesh Sharma has been making, has been going on since December when the election results of Rajasthan came out. Why has Chief Minister or the former Chief Minister of Rajasthan, Ashok Gehlot, has not come out so far and responded to any of the statements that Lokesh Sharma has made so far? That is also, and he has made some very serious allegations apart from not only mentioning that he was given the phone recordings by Gehlot himself. He has also mentioned that there was, massive corruption during Ashok Gehlot's tenure. He has also mentioned that there were attempts to discredit the image of Sachin Pilot and of Cabinet Minister Gajendra Singh Shekhawat, and there were discussions held at the Chief Minister's residence when Ashok Gehlot was in office. So these are some of the serious allegations that Lokesh Sharma has made, and Ashok Gehlot could have earlier come out and responded to some of the diatribes that Lokesh Sharma made, but he has not done that so far. Follow me? Dave, thank you so much for joining us with all of those updates from Rajasthan.